they own every role that they do. They are formidable, they are versatile, and they are men of many parts. One is a writer, one is a director, and besides, of course, acting. I am in conversation with Pavel Gulati, Chandan Roy Sanyal, Manav Kaul, and the wonderful Gajraj Rao. Thank you so much for being part of this conversation. So my first question to all of you, I mean, between at least three of you, you all have a 20-year career. You started with Bandit Queen, you started with Jajantaram, Mamantaram. सेम उम्र के हैं, ये थोड़े यंग लगते हैं. हाँ, वही. Absolutely. So my first question to you is, what's the best and the worst piece of advice that you've got in your life? I can start. The worst advice I got was when somebody had read the script of Thappad and told me not to do it, and I was supposed to listen to that person, and thank God I didn't listen to that person. It changed my life. I think that was the worst advice, but thankfully I didn't take it. And the best advice was actually Anubhav sir, who gave me this advice कि अभी picture hit हुई है, इसके बाद picture flop भी होंगी, so don't take this कि this is it, and जब flop होगी so don't take it कि वही है, ऐसी life चलती रहेगी, so don't get too happy with the success and don't get too sad when things are not looking up, basically. मैं जब आया था और मैं जब बहुत थिएटर कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि दिस इज़ द टाइम यू शुड डू फिल्म्स, यू शुड डू मोर टीवी और मोर वेब एंड एवरीथिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज एक एज के बाद क्या करोगे, थिएटर करना. एंड मैं लिखता भी बहुत हूँ, मैं ट्रैवल भी बहुत करता हूँ, सो एवरीथिंग अगेंस्ट दैट, यू नो. उसने बोला कि ये मत करना. और मुझे लगता है कि मैं सुनता तो किसी की नहीं हूँ, लेकिन बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लाइफ, तो सारी गुड एडवाइस एंड बैड एडवाइस ना एक साथ डिसॉल्व हो जाती है. मतलब इन द एंड आई थिंक इट डजंट मैटर. So you're saying you don't take good advice or bad advice seriously? Because idea is I got one life and I want to live the way I really like to live, in a very small, tender, छोटे उसमें. I don't want to live a bigger life, और मैं वो नहीं हो जाना चाहता हूँ जो मैं हुई नहीं. You know, I am this. I write, I live small, I do sometimes little work here and there, and that's it. And I will, yeah. So I don't know what to do with good advice or bad advice, because nobody knows where I come from, क्या मैंने किया है, क्या मैंने देखा है, and what kind of book I have read while I was coming here. So you know, you come with so much background, every person, and I am just, मैं अगर चंदन को advice दूँ इस वक्त कि चंदन तेरे को ऐसा करना चाहिए, I don't know चंदन ने 5-10 दिन कैसे गुजारे. So you know, good and bad advice just becomes, you know, null, doesn't matter. ऐसा मुझे लगता जी. मेरे पास दो हैं. एक है जो डायरेक्ट एडवाइस नहीं था, इनडायरेक्ट एडवाइस था. बहुत साल पहले, 20-22 साल पहले, दिल से फिल्म में मैंने काम किया था, एक छोटा सा पार्ट, और मणिरत्नम सर के साथ. और एक सीन था जहाँ पर मैं मेरे जो CBI के कलीग हैं, हमें बॉम्ब मिल जाता है, टाइम बॉम्ब दिखता है. हम लोग कहीं टाइम बॉम्ब लगा, हम लोग गए हैं वहाँ पे, रेड किया, और हमें वो एक ड्रम में रखा हुआ है. तो मैं वो हैंडहेल्ड कैमरा में मेरे पीछे दौड़ रहा हूँ, मैं पीछे जाके बॉम्ब है. यंग 20-22-24 साल का एक एंथू कटलेट जिसको प्रूव करना है कि वो इस फिल्म के से झंडे गाड़ देगा. और मणिरत्नम सर ने बुलाया, नजदीक आए, गैजरज, it's wonderful, your energy is very good, but in cinema few things are conveyed through camera, that's why it's cinema. You don't have to say bomb hai. मैं जड़ ऐसा हो गया था कि मुझसे क्या गलती हुई, लेकिन वो ऐसा एक लेसन था जो मुझे हमेशा याद रहता है कि सिनेमा है वहाँ पे. और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पे लाइंस की ज़रूरत नहीं है. तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, अगर वो परेशान दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है, मॉनिटर में नज़र आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं परेशान दिख रहे हो, डायलॉग नहीं बोलूँगा. क्या हुआ? तो ये एक लेसन है. और दूसरा है, अगेन शुरुआती दिनों में वो डायरेक्ट एडवाइस था
शेखर कपूर साहब के साथ बैंडिट क्वीन कर रहा था और उन्होंने कुछ एक सीक्वेंस में गांव का, और मैं गांव से हूँ, देहात से हूँ, तो वहाँ पे कुछ कि ऐसे कास्ट सिस्टम में लोग कैसे बैठेंगे, क्या होगा, वो पूछ रहे थे। तो मैंने बड़े डरते डरते बोला कि ये लोग ऐसे नहीं बैठेंगे, जूते यहाँ होंगे, लोअर कास्ट है तो उनके चप्पल यहाँ होंगे। तो ये मैंने आधे घंटे बाद बोला, तो उन्होंने बोला गजराज मैं तो कब से पूछ रहा था, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बोला सर वो क्योंकि मैंने किसी और को कन्वे किया था, उसने मुझे गाली देके डांट दिया था। मतलब माँ बहन मेरी याद कराई और बोला कि चुप रहे, मतलब ये दिस इज नॉट योर प्लेस। तो शेखर जी ने बोला कि वट एवर मे हैपन, इफ यू थिंक सेट पे कुछ गड़बड़ हो रहा है आर्ट में, कॉस्ट्यूम में, डायलॉग में, तो उसको कन्वे करो, डायरेक्टर को जाके बताओ उसको, क्योंकि वो कलेक्टिव फोर्स है, कलेक्टिव तरीके से काम हो रहा है और फिल्म के प्रोजेक्ट के बेटरमेंट के लिए आप बोल रहे हो। तो वो भी करता हूँ, मैं आज तक करता हूँ। मैं मानव बाल तुम्हारा ऐसे होगा, शॉट से पहले मैं बोल देता हूँ, बुरा लगे मानव को तो लगे, ये मानव की हेडेक है। मुझे लगा आप सच में बोल रहे हो। मेरे को लगा उड़ ही रहा है मेरा शायद। और जो वर्स्ट एडवाइस था, बधाइयों की इमीडिएटली बाद मेरे एक्टर दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि गजराज ये तू सब्जी वब्जी लेने मत जाया कर अब। और मुझे देखा उन्होंने गली में, मैं तो जा रहा था, मुझे तो अभी भी जाता हूँ मैं। तो बोले मेरे मुझे क्यों? यू हैव रीच्ड, यू आर राइट, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मतलब उससे फर्क पड़ता है, काम पे फर्क पड़ेगा, लोग देखेंगे, कोई देखेगा तो उनको लगेगा तू अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। तो मुझे कुछ दिन तो लगा कि हाँ मुझे नहीं लेने जाना है। फिर मैंने लकीली वो तोड़ दिया, मैंने कहा नहीं यार, ये कहीं एक आपका अंदर का एक वॉइस होता है ना, वॉइस ऑफ सैनिटी, जो बताता है कि ये सच नहीं है, ये माया है। मैं सोच रहा हूँ कि वो जो 3-4 दिन आप सब्जी लेने नहीं गए थे, वो जब बैठे थे कि नहीं जाऊंगा, 3-4 दिन नहीं, कुछ हफ्ते नहीं जाऊंगा, चाहे टमाटर हो घर में, चाहे नहीं हो, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं कि मैं सब्जी लाना मेरी जिम्मेदारी है, सब्जी मेरी पत्नी लेकर आती है, लेकिन कभी आते हुए, शूट से आते हुए कहीं से, तो वो यहाँ से ये भुट्टे ले आना, यहाँ पे ताल क्या होता, तारगोला ओशिवारा चौक पे मिलेगा, वो ले आना। तो वो जो चीज है ना, मुझे लगा, मुझे एकदम मैंने लिया कि हाँ यार इतनी सब तारीफें कर रहे हैं और मुझे करना चाहिए, मैं अच्छा लगूंगा क्या सब्जी लेता हुआ। लकीली मैंने अंदर की आवाज सुनी कि नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि ये रियलिटी है, ये जो तारीफें हैं तो कभी फेड आउट हो सकती हैं। आई थिंक मैं तो सोच ही रहा था तब से बैठ के कि किसने आज तक मुझे ऐसा बोला जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो इसने क्या बोला जो मुझे करना चाहिए था। आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड एडवाइसेस फ्रॉम पीपल, लाइक फ्रॉम माई गुरुज, like one of the 3 gurus. I started with Habib Tanveer. Then I went on to Alik Padamsi, Tim Supple. Everybody gave me one key rule to live life or to act. I learned patience from Habib Sahab. I learned about like no roles are small. Alik Padamsi ने एक बार कहा था कि not any role is small. Actors could be small or big, but no role is small. I was going to use that as my intro. There are no small, but then तो I didn't use it anyway. क्योंकि एलिक क्या करते थे ना, वो हमेशा he had a notebook, क्योंकि तो तब तो कुछ गूगल कैलेंडर वगैरह था नहीं, तो everything used to write down. So one day he told me that no roles are small. It could be big, small actors. टिम सपल जो थे मेरे एक और गुरु हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था कि कीप इट फ्रेश, एनीथिंग keep it fresh, in the sense like whether it's life, whether it's a scene, you have to always keep it fresh, as if it's happening for the first time in your life. No, it should not, because when I was working with him, I did like 350 shows of Midsummer Night's Dream, and I was telling somebody yesterday, like when you're doing television or when you're doing film over like a year or 2 years, every time the scene changes. But when you're doing one play, one role every evening for 3.5 years, how do you keep it fresh? You know, that was the biggest challenge, because every day I used to do the show, every day I used to come back and say, ye maza nahi aaya. So you come back after the show, you said, okay, today probably I have done something right. Then he would pull some other string from somewhere else. So then again you go on stage, next you're focusing on that scene, and something other goes wrong. So that kept me always on the foot. So, and worst advice, I think somebody in college told me, like, you know, you're short, you cannot be a hero, or you cannot act, something like that. Abhi to gitta hai to kya act karega? Okay, but
obviously take it seriously. But yeah, अभी तक सोच रहा था यही 3-4 चीजें याद आई मेरे को. Does it require do you have to unlearn a lot of what you learn in theatre when you come and do cinema or you do OTT? Is there a lot of unlearning? Like, I'm sure you're a crazy man yourself, but you even learned mathematics, and you used to teach, right? Mathematics, and you of course write books and all of that. But when you do theatre, and do you have to unlearn what you do in theatre when you do cinema? Is there a lot of unlearning, or theatre, everybody says you must do theatre, it sort of gives you the basic tools to act and all of मैं that? नहीं मानता हूँ कि you have to do theatre. First of all, also मुझे लगता है कि theatre आप theatre के लिए करते हो. You're not doing theatre because one day you're going to do films. Because theatre की like जितने schools हैं या जितनी books हैं acting की, वो actually theatre की acting books हैं. वो cinema की acting books हैं नहीं. वो एक्टिंग बुक्स. और मुझे लगता है कॉमन सेंस इज द बेसिक थिंग दैट यू अंडरस्टैंड. कॉमन सेंस अगर आप में है, सी इफ यू आर अ बैड एक्टर इन थिएटर, यू आर डेफिनेटली अ बैड एक्टर इन फिल्म्स ऑल्सो. ऐसा 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 नहीं है कि आप बहुत ग्रेट थे और बहुत ख़राब हो उसमें, ऐसा कुछ है नहीं. बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव कॉमन सेंस. और मुझे लगता है कि एनी थिंग, इफ़ यू मेक ए गुड शूज़ और मेक ए ग्रेट चाय और रन ए ग्रेट कॉफ़ी शॉप, इट विल इफेक्ट योर एक्टिंग. मतलब यू ट्रैवल एंड वो ट्रैवल आपकी एक्टिंग को इफेक्ट करता है. एवरीथिंग, बिकॉज एक्टिंग इज समथिंग दैट यू, आप शायद अंदर से, आपके अंदर से आता है ना हर कैरेक्टर, हर चीज़. सो जितना आप जियोगे उतना सुंदर आपकी एक्टिंग होगी. सो डजंट मीन डायरेक्टली कि मैंने स्टैनिस्लॉवस्की का ये पढ़ा और मैं ग्रेट एक्टर हो गया, ऐसा होता नहीं है. द काइंड ऑफ लाइफ यू लिव is a better actor you are, I guess. But you're saying there's absolutely no difference between the mediums when it comes to acting. It's a storytelling. I mean, जैसे बहुत सिंपल एक छोटा सा लॉजिक, आजकल स्मॉलर थिएटर बहुत आए हैं, ब्लैक बॉक्स थिएटर एवरीवेयर, एंड देन देयर इज अ प्रोसिनियम थिएटर. मैं सेम प्ले करता हूँ प्रोसिनियम में, वेयर इज 1000 ऑडियंस, एंड सेम प्ले करता हूँ वेयर आर 200 ऑडियंस. माई परफॉर्मेंस चेंजेस ऑटोमेटिकली बिकॉज इट्स an intimate space. I perform differently. When I'm in a proscenium stage, I perform differently because I have to reach out. So it's the same thing. Camera is here. Camera is looking at everything. So I don't not need to reach out. I need to live it. But sometimes in theatre you have to reach out. And it's common sense, I guess. मतलब हम जितने, मेरे को कभी नहीं दिखा कि कोई एक्टर स्टेज पे बहुत अच्छा था और मतलब इनकी परफॉर्मेंस भी जब से कर रहे हैं. मतलब मैंने इनको देखा था ब्लैक फ्राइडे में और मैं फ़ैन हो गया था. मैंने कहा क्या परफॉर्मेंस थी, एक सीन, एंड दैट सीन वाज माइंड ब्लोइंग. एंड यू कैन सी द एक्टर इन हिम सो मच, लाइक मतलब इतना भूखा एक्टर जो करना चाहता है बहुत अच्छा कुछ. सो ही इज शाइनिंग बिकॉज ऑफ, आई थिंक, दैट हंगर. But I believe that everybody should do theatre. One thing I definitely agree, that theatre is not about learning acting, and all the acting books are not meant for cinema. But you know, like there are some actors who are great on stage, may not be that great on cinema, and some actors are great on cinema, may not be. And then there are some actors who are great in cinema as well as. So it's different. And obviously experiences, traveling, where you work, what you eat, what you smell, what kind of books you're reading, what kind of state. It's basically state of mind. But what I believe that every actor should go through the corridor of theatre once, because when you understand how to break down a scene, how to understand the continuity of an emotion, how do you understand that how you walk from A to B, when you do one, even if you do one play in life and go through that workshop or as a process, I think you learn a lot. You might not become the greatest actor, but what you can become is you understand the whole journey of approaching one character, and that exercise would really help. Then you may not do it for years and you straight away jump into cinema, but definitely acting is not the theatre is not the stepping stone to do cinema. And a lot of it you can borrow it from, like I was told by someone that Daniel Day-Lewis was not a great stage actor. He is a great actor in cinema, but when he was on stage, he was not that great on stage. And then if you see, like, you know, Sam Mendes, when Sam Mendes made American Beauty, he's as great a theatre director and a great cinema storyteller also. So I think it's all differs from human to human, but I definitely feel one should definitely do one's theatre in life
to understand it. I think it's a way of living. When you do a play, when you read it together, you don't judge each other. Who's got a bigger part? Who's got a smaller part? We all pick up the set together. We all come together. We drink the same chai. So with the camaraderie which the theatre brings, if you bring that camaraderie to a film set, no, everything changes. So that, apart from acting, if that camaraderie, if you learn from theatre, it can do wonders to your life. And acting is one medium. I mean, one part of that structure building, I think. मानव ने जो बोला उससे कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन मिलता नहीं है इनसे। कि इन्होंने मेरी तारीफ़ की, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए। मुझे तो हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं मिला पा रहा हूँ, सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर एक्टर के लिए, एक्टर की जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपको टूल्स देता है, वो आपको सिखाता है कैसे खड़ा होना है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे बहुत सारे नॉन एक्टर्स देखे जो रिहर्सल्स में हमारे थिएटर ग्रुप में आने के बाद उनके अंदर 100%, 1000% का चेंज आया। जिनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, वो आवाज़ें निकलने लगी। तो वो थिएटर का वो एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में भी काम आता है। वो क्योंकि आप थिएटर खाली नाटक ऊंची आवाज़ में किसी को सुनाना नहीं है, वहाँ पर आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप चेखव को पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप मंटो को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप अलग अलग किस्म की कविताएं पढ़ रहे हैं। तो वो ओवरऑल एक उसके अंदर बदलाव आता है। और साथ साथ करते हुए कि थिएटर और सिनेमा की एक्टिंग में क्या फर्क, वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फ़र्क है उसके अंदर। क्योंकि ड्रामा जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपकी आवाज़ या आपको जहाँ तक पहुँचना है, और सिनेमा में कैमरा ऑडियंस है। जैसे मणि सर ने बोला कि वहां पर आपको ऑडियंस की चिंता नहीं करनी। स्टेज में आप ऑडियंस के सामने हैं, दो पक्ष हैं, क्या बोलते हैं उसको, दो आयामी है ना, दो आयामी दुनिया है कि यहाँ पे आप हैं और वहां पर ऑडियंस है। सिनेमा में आयाम सारे दीवारें टूट जाती हैं, आप पीठ करके खड़े हैं और टर्न कर रहे हैं, तो वहां पे आपको चिंता नहीं होती। और मैंने बहुत एवरेज एक्टर्स को भी सिनेमा में तकनीक की वजह से अच्छा काम करते हुए देखा है, क्योंकि वो फाइनली जाके फाइनल एडिट में पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये मेरे विज्ञापन का एक्सपीरियंस है, मैं एड फिल्म्स डायरेक्ट करता रहा हूँ। तो इन 20 सालों में मैंने रियलाइज किया कि मैं जब शूट पे बड़ा हताश हो जाता था, अरे यार ये एक्टर तो गलत आ गया, ये तो गलत कास्टिंग हो गई। लेकिन वो एडिटिंग के बाद, उसका डबिंग के बाद, वो बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिखता है। तो ये फर्क है मुझे लगता है। तो I'm very curious to know, because you spoke about actors, do you all intimidate your co-stars in the sense when you do a scene and you work with a lot of big directors, how much does your director protect you in such an environment? Do they create a safe space? मैं बताता हूँ। बैंडिट क्वीन, पहला सीन, पहला सीक्वेंस हो रहा है, पहला शॉट हो रहा है धौलपुर के जंगलों में, रिवाइंस में। और ये चैनल 4 का प्रोजेक्ट था, अंग्रेज थे बहुत सारे सेट पे। जो शेखर जी का पहला फर्स्ट असिस्टेंट या चीफ असिस्टेंट था, वो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, और उनसे लंबे, 1.5 फुट लंबे, और उनसे उम्र में भी ज़्यादा थे शायद। ये पहली बार मुझे मालूम चला था कि आपके असिस्टेंट आपसे उम्र में लंबे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। कि आप अगर 30 साल के डायरेक्टर हैं तो उसका असिस्टेंट 50 साल का हो सकता है। ये मुझे नहीं आइडिया था उस बात। तो वो पहले शॉट के टाइम पे उन्होंने स्लेट दिया, क्लैप दिया, और टक करके आवाज आया, टक, इतना नजदीक मेरे ऐसा हो गया। ये मेरा पहली फिल्म, पहला शॉट, किसी तरह से मैंने वो कर दिया। और थोड़ी देर बाद शेखर जी को देख रहा हूँ, वहां पे लॉरेल हार्डी की तरह शेखर जी और ये दोनों खड़े हुए हैं सिलुएट में। अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे नजर आ रहा है। नो, यू कैन नेवर डू दैट, यू विल नॉट डू दिस टू माई एक्टर। और वो सॉरी सर, रियली सॉरी। मुझे फिर असिस्टेंट ने, किसी ने बताया कि शेखर जी ने क्लास ली कि इस तरह से आप, ये एक्टर है, थिएटर का है, इसको पता ही नहीं है, पहली बार शायद कैमरा इतना बड़ा फेस कर रहा है, ये आप ऐसे नहीं करेंगे। तो वो मुझे, और शेखर जी ने दूसरा किया कि हम लोग जो छोटे रोल वाले सारे एक्टर्स थे, वो एक C ग्रेड होटल में रुके हुए थे, CD ग्रेड, जो और धौलपुर छोटा सा एक
मुफस्सिल छोटा सा टाउन, वहाँ पे थे ही नहीं होटल जो मतलब कि कहाँ पे ठहराएंगे, लेकिन उसमें भी जो टॉवल गंदे, मच्छर भरे पड़े हैं, पानी गंदा, ये सब हो रहा है। दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन शेखर जी किसी से मिलने बाय द वे आ गए वहां पर, और बाय द वे उनको दिख गया कि ये क्या हो रहा है। और जो उन्होंने वहां पर प्रोडक्शन वाले की झाड़ लगाई, उन्होंने बोला कि ये यहाँ पर अमिताभ होता, नसीर होता, ओमपुरी होता तो करते तुम, ये कल के ओमपुरी और नसीर हैं, और हम लोग अपने अपने सारे 15-20 लोग अपने मैं शूट नहीं करूंगा अगर यहां पर इस तरह का माहौल रहा तो। रातों रात साफ टॉवल आ गए, सफेद वाले बाजारों से पानी की अपना मिनरल वाटर की बोतलें, क्रेट के क्रेट। वो अलग बात है कि वो थिएटर के हम निकम्मे एक्टरों ने उस पानी का नाजायज फायदा उठाया, कुल्लियां तक की उस पानी से। तो वो इतना ज्यादा, वो पूरा एनवायरनमेंट में शायद 7-8 दिन था शूट पे, लेकिन देखा कि वो कितना प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज को। और रिसेंटली मैदान फिल्म में 1.5-2 साल पहले मैं शूट कर रहा था देवगन साहब के साथ, पहला शॉट। और अब घर पे होते तो आप सोचते हैं कि होगा स्टार, मतलब आपको, आप मुंबई में रहते हैं, इतने साल स्टूडियोज के चक्कर लग चुके हैं, तो आप मन में सोचते हैं कि हाँ ठीक है ना, होगा। लेकिन जब वो आता है सामने वो स्टार, तो आपको वाकई में थोड़ी सी धड़कनें बढ़ती हैं। आप, क्योंकि आप लगातार वो सारे गंगा जल, जख्म, सिंघम, वो आपकी आंखों के सामने आता है और इतना क्लोज। तो मैं हल्का सा उनके चेहरे पे खो गया। रिहर्सल में अमित मुझे किनारे लेकर गया, बोला कि गुजरात जी आप रॉय चौधरी हो, आप फैन नहीं हो अजय देवगन के, और वो रहीम है, ऐसे रहीम की आपको बैंड बजानी है। हाँ यस यस यस। तो अगेन कि वहां पर 3 टेक हो रहे हैं, 4 टेक हो रहे हैं, तो मुझे अमित एक कमाल का नौजवान डायरेक्टर है कि जो आपको ऐसा नहीं कि अच्छा देवगन साहब आपका शॉट हो गया, चलो वेरी गुड, अच्छा कर दीजिए कि इसका पार्ट निपटाना है, ये नॉन स्टार है, इसका पार्ट निपटा देना है। वो उस बंदे में गट्स हैं, हिम्मत है, उसका क्राफ्ट है, वजन है कि वो वहां पर बोला हाँ नहीं गजराज जी आपको ये करते दोबारा करते हैं स्टार के खड़े रहने के बावजूद। तो मुझे ये 2 एग्जाम्पल है जो इमीडिएटली मुझे आए। और मेरा और एक क्वेश्चन था, हैव योर कोस्टार्स बीन इंटिमिडेटेड बाय यू? क्योंकि सर मेरी लर्निंग ऐसे एक्टर्स के साथ हुई शुरुआत में, जो थोड़े से आपको अपने ऑरा का, अपने वजन का आपको देते थे शुरुआत में। तो मुझे था कि मैं ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, अगर मेरी कभी थोड़ी सी भी हैसियत हुई तो मैं आपके साथ हुआ? मेरे साथ हुआ था, यस। तो वो जहां पे आपको, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं और बता भाई, वो डायरेक्टर अगर नहीं गजराज उनके कंधे पे हाथ मत रखो, ही इज अ स्टार। Really that happened? यस। तो वो अगेन उस 20-25 साल पहले का माहौल अलग था, वहां पे सब चीजें अलग तरीके से मानी जाती थी। अब अलग हो गया। जो स्टार्स हैं, जो सही मायने में स्टार्स हैं, वो ऐसे बिहेव नहीं करते। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं मेरे से अगर यंग एक्टर्स हैं और या कहीं पे ऐसा है कि जैसे हम छोटे शहरों में करते हैं, तो वहाँ के जो थिएटर एक्टर आते हैं तो वो आपसे प्रभावित होते हैं। उनको लगता है अच्छा मुंबई में रहता है, इसने ये पिक्चर की है। तो मेरी कोशिश रहती है कि यार सीन तो अच्छा होना है ना। अगर वो मेरी तरफ ऐसे ही देखता रहेगा कि ये अब तो वही भैया अब तो कमाल हो यार है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उसको कितना सरल बनाया जाए उस प्रोसेस को, वहाँ पे उनको ये बताया जाए, कन्वे किया जाए कि मेरे सींग है ही नहीं, वैनिटी में भी नहीं रखे मेरे सींग, मैं बिना सींग वाला ही हूँ, मैं जैसे आप हो मैं वैसा ही हूँ मैं। तो उससे चीज़ें आसान हो जाती, मेरे लिए भी आसान होती। मैंने एक फिल्म की थी शाहरुख खान साहब के साथ, और उसमें इम्तियाज़ अली डायरेक्टर थे, मेरा छोटा सा रोल था। सो दोनों ही उसमें इंटिमिडेटिंग सब सारी चीज़ें हो जाती है उसमें। तो उनके साथ सीन था, सुबह के कुछ 5-5:30 बज रहे थे, अनुष्का शर्मा इधर खड़ी हुई हैं और शाहरुख खान आ गए, और मैं उनकी आंखों में सुनील दिखने लग गया। नींद भी आ रही थी। और इम्तियाज़ अली ने बोला एक्शन, ठीक है। मैं देख रहा हूँ और ना मैंने लाइन बोला, अब मेरे दिमाग में वो सुनील ऐना करीना वही चल रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ
और मैंने लाइन बोलना शुरू किया. अब लाइन है मेरी A, उनकी B, मेरी C, उनकी D. तो मैं A, B, C, D उनकी लाइनें भी याद करके बोले जा रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कट कट. अबे ही से दिल्ली वाला है. अबे मेरी लाइन क्यों बोल रहा है तू? मैंने क्या हुआ? सॉरी क्या हो गया? एंड आई एक्चुअली वाज in a daze, it was like a spell. So then he started smiling. He realized that, I got lost into his eyes. That happened. And then Imtiaz Ali, like him, he's come from theatre. वो एक्टर्स के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं और वो कभी कैमरे के पीछे नहीं खड़े होते हैं. वो जैसे अगर हम और आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो वहीं बैठ जाएंगे नीचे ज़मीन पर. एंड ही हियर्स द रियल वॉइस. वो मॉनिटर पे या कैमरा पे नहीं देखते. तो वहीं दिस वेरी इंटिमिडेटिंग ऑल्सो एज ए डायरेक्टर. इफ योर डायरेक्टर इज राइट देयर. मतलब स्टेज पे भी नहीं होता है ना कि आप सीन करें तो वो आपका पर्सनल स्पेस होता है. जो एक्टर सीन कर रहे हैं, गलती होगी तो डायरेक्टर आगे आपको डांटेगा. लेकिन इम्तियाज सर क्या वहीं बैठ के नीचे एकदम सुनते हैं. इज लाइक दैट. अगर मैं और पवेल सीन कर रहे हैं तो यहाँ बैठ के वो सुन रहे होंगे ऐसे. यू विल नॉट गो टू द मॉनिटर. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस because you get intimidated also, but you also feel the love from the director. That is so, and it could be anyone, A, B, C. I could be in priority, the H of a scene. Like he really cares. He really cares. He would sit here and he would listen to you. Because we were doing a scene, I was playing a Bangladeshi Don, and all the other Bangladeshis were real Bangladeshis from Portugal. And I was Bengali, I picked up the accent, and everybody else was Bangladeshi, and then Shah Rukh Khan Sahab was there, but he was on the floor, listening to everyone like that. Do you use that as a director? What you learned, what Imtiaz? Do you lot of stuff from my theatre directors, from film directors. You tell me, has any like obviously like Chandan said, directors, creator, but what have you had a personal, like I think Anubhav is that sort of director who creates this happy personal space for, but have there been co-stars who were intimidated or tried to intimidate you? Not really. Actually, weirdly, what has happened till now is that I've worked with directors who really pamper me. So once they see me very pampered by the director, any other actor can't intimidate me because I become the director's boy, whatever, in that sense. पर I think जब मैं भी theatre से ही हूँ. मैंने 3 साल नसीर साहब के साथ थिएटर किया था. नहीं बट आई थिंक दैट वाज द टाइम आई गॉट रियली इंटिमिडेटेड बिकॉज नसीर साहब वाज माय टीचर एंड नसीर साहब हैज बीन तो स्टार्टिंग में क्या होता था, आई यूज्ड टू टेक स्टेज एंड मैं सीन जब करता था ऐसा करता था कि मुझे ना नसीर सर को इम्प्रेस करना है, नॉट द डायरेक्टर बट दैट मैन हु इज द ऑरा द एक्टर, कि ये एक्टर अगर मुझे बोलेगा कि बहुत अच्छे एक्टर हो मेरा दिन बन जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ I think that was the point when I realized that I don't need to impress him or any other person. I need to impress the director part of it. If the director is happy with me, then everything is going good. But Naseer sir was intimidating in the start, but then he became like a father figure, which is the best thing that ever happened. But I don't get intimidated by anyone, and I think people think I'm a little intimidating because I don't talk much on set. I don't talk वैसे भी in general life ज़्यादा, but वो 1-2 दिन के बाद when I open up and then everything is fine. How do you hack the system today, like as an actor? When you did Jajantaram, Mamantaram, and you came at a time when I think the new wave of cinema had really started. Like if you say your literary breakthrough performance was, correct me if I'm wrong, Tumhari Sulu, in that sense, like people sat up and noticed, oh wow, there's this actor called Manav Kaul, popular. Of in your case, I think Kamine, it was really, and in your case, Badhai. So was there a lot of one resentment or any kind of bitterness that built up in you? And secondly, how did you hack the system? Like a lot of actors tell me, आजकल तो सब लोग मॉनिटर पे हेयर स्टाइलिस्ट मेकअप मैन ये एंड द ओल्डर एक्टर्स से वी जस्ट कैन नॉट हैक इट, वी वुड नॉट इवन लुक एट द मॉनिटर, द डायरेक्टर सेड कट, okay, but has anything else changed for you as a, like you find it difficult to deal with? Left acting for 12-13 years because I wasn't enjoying it. And I thought I'm wasting my time and I'm wasting someone else's money and everything also, space also. So I left acting and फिर काय पोचे से I started again. In 2013. तब actually cinema भी बहुत change हो गया था because sync sound आ गया था,
आई स्टार्टेड एक वाइब ही पूरी चेंज हो गई थी परफॉर्मेंस की और सबकी, एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और उसके बाद मैं एक साल में एक फिल्म सिटी लाइट्स फिर धीरे से, एंड देन आई गॉट तुम्हारी सुलू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट मुझे लगता है कि मुझे असल में मैं कभी कुछ क्रैक कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे कैसे काम मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो मुझे पता भी नहीं है क्यों नहीं मिलता है। आई जस्ट डू माई परफॉर्मेंस एंड आई लीव एंड आई डू माई वर्क एंड आई देन व्हेन बिकॉज आई लव एक्टिंग जब मैं करता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके अलावा मुझे पता नहीं क्या करना है, बिकॉज आई डोंट लाइक PR, so मैंने कभी PR किया नहीं लाइफ में। आई कैन डू, मतलब आई लव एक्टिंग, आई नो हाउ टू परफॉर्म, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। सो वहाँ मैं लॉस्ट हूँ। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट कीप क्वाइट व्हेन आई गेट माई जॉब, एनी जॉब, and I just do it with 100% of commitment, and then I don't know what to do. So you're very detached from no, the process. I don't know what else to do. I think I know I'm doing something wrong. No, it's because beautiful. I am. It's not easy to be so. Everybody's so invested. It's beautiful. नहीं that you're so अब detached. हाँ, because मेरी समझ में आता नहीं है कि करूँ क्या। I'm not good with waiting. So what I do is I do a lot of things anyways. But ये acting का एक जो मामला है जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। But when I get a job, I do it with like 100% commitment. So you don't call up a casting director. You will not go and audition for. I audition. Okay, but you won't see. Tumhari Sulu, all day I did audition because I loved the role. With this अभी जो recently आया त्रिभुवन मिश्रा CA Topper, because I read the script and I loved it so much, मैं पीछे पड़ गया था प्रोड्यूसर सबके कि don't cast me, just give me one chance, just audition me, because मैं छोटे टाउन से आता हूँ, आई नो दिस कैरेक्टर, मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ परफॉर्म। सो बट दे वर लिटिल हेजिटेंट कि नहीं यार हमको कुछ एक अलग किस्म का एक्टर चाहिए। बट आई वाज लाइक मैं हमेशा ऑडिशन देना चाहता हूँ, आई लव ऑडिशंस बिकॉज एटलीस्ट उस समय हम सब एक सेम पेज पे आते हैं ना, आई कैन परफॉर्म। सो मोस्ट ऑफ माई वर्क इज थ्रू ऑडिशंस। तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। But will you call up a director and say I want to work with you? हाँ, ये नहीं किया मैंने कभी, पर किया है, लेकिन ऐसा हाँ वो करना चाहिए मुझे। बट मुझे ऐसा लगता है कि माई जॉब इज टू परफॉर्म, एंड इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल आई शुडंट गेट द जॉब। सो आई एम ट्राइंग टू improve my acting skills so that I can impress more people rather than. No, I think all the people who you have to impress have been impressed. I have heard your name being taken in very many places with a lot of respect and reverence. But I need to crack the other part which I like, get like a little more work. But let's see. Hopefully, Yes, I sir. will. You were saying how do you hack the entire system then and now? No, I don't think I have not been able to hack the system. I don't know what is the system. Everything happened by accident. So I was telling someone, like when I got Kamine, before that I was working on a British production, so I was traveling with it. By the way, he's had shared a drink with Dame Judi Dench. No, he doesn't. Yeah. Mr. So I was coming to Sanyal. that only. So when I was doing Midsummer Night's Dream with Tim Suppal, so I was away for about 3.5, 4 years. There was no phone that time. There was no, and I didn't have a number. I didn't have a phone. I was only on email, and I was having a time of my life. I was somewhere I was in Sydney at the Sydney Theatre Company, interacting with Kate Blanchet, or when I was in Stratford, I had interaction with Dame Judi Dench. I saw the rehearsals of Sir Ian McKellen when he was doing King Lear for the whole day, and he was fully naked. समझ रहे आप? मतलब वो आता है Ian McKellen, मुझे पता है वो एक थिएटर है, कोर्टयार्ड थिएटर इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवॉन, तो वहाँ पे दिन भर रिहर्सल चल रहा था। तो वी गॉट एन इन्विटेशन कि आप भी सारे एक्टर्स कंपनी वाले आइए। तो हम बैठ के देख रहे थे यार, वो आदमी वो लाइक 80-year-old guy, he comes and he drops his robe, he's naked on stage and he's doing his line, then obviously cut, re-rehearse the scene, again he goes back, again he comes back, drops the robe, and he's doing over and over and over again. So I was watching all this, and then when I was here, then Mukesh was with Honey that time, and he called me ki yaar Chandan, Mukesh and me were very old friends, so we had done Rang De Vasanti. Both of us were from Delhi, and both of us acted in that film as co-actors, and we were like old friends. So Mukesh called me, यार तेरे को पता है चंदन ने विशाल जी फिल्म बना रहे हैं, एक रोल है, तू उसके लिए ऑडिशन कर देगा? हाँ कर दूंगा, क्योंकि मैंने ओमकारा देखी थी. So then I auditioned for the part, and then like Manav said,
I love auditions because audition is the only time when you're naked. Only when it kills your ego, it breaks your ego. These are the processes. It's the most cherished moment for an actor. That if you get to audition, you should always audition because then you put yourself in a cage, in a cupboard. I am this, I'm that. The moment you get an audition, now everybody thinks, यार ऑडिशन करना चाहिए, मैं अब तो अब ये बन गया हूँ, मैं अब वो बन गया हूँ. लेकिन जैसे आपको ऑडिशन मिले ना, मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपना दरवाजे पे ईगो छोड़ना पड़ता है. Before you even approach a role, before you imbibe a character emotion, the first time you have to kill your ego. So anyway, so Honey called me, and then by chance I auditioned and I went away, and he auditioned for whole day. I auditioned with different bhopes, then I went. So when I came back, he gave me the part. He sent me an email, and after 2 months I read the email, and I was in Toronto that time doing Toronto International Film Festival. There is a theatre wing, like a parallel theatre festival, Luminato. So I checked my email by chance, and then I saw Honey's this thing, and I called him, and he was really furious with me. Hey, what kind of actor are you? Vishalji wants you, and I said, I don't know. I don't have a phone, I don't have email, because उस टाइम पे मतलब international calls were so expensive. No, अब how will you keep a card? And तो माँ को भी मैं वो phone card खरीद के वो fake वाला $5 वाला. So I got the part, I came and I did it with all everything in my system. I gave everything, not to become a star or not to become a hero or anything. This is Vishal Bhardwaj and it's a great part, I gave everything to it. And I went back again to where I was. I went back to somewhere else. Then that film came and it became something, and that's where my difficult time of my life started. The waiting. No, because I didn't know what to do, and then those worst piece of advice started. अरे तू तो आ गया है, तू arrive हो गया है, सब्जी लेने तेरा हाँ तू सब्जी लेने मत जा, सबसे पहला काम कर सब्जी लेने. Yeah. Then? No, because I didn't know what to do. I didn't know you have a manager, you have a publicity manager, you have this, you have that. So suddenly, it was a very small part. It was an 8 to 10 minute part, but it was Vishalji's magic that he gives everybody a chance in terms of. You're fantastic in it. Yeah, thank you. Amazing. It's because it was the first role I gave everything, but not expecting anything in return. That कि फिल्म हिट हो जाएगी और मेरा कैरेक्टर बोलेगा, गाना हिट हो जाएगा, ये सब कुछ प्लान नहीं, आप कुछ प्लान कर भी नहीं सकते. तो वो हो गया ना, तब मुझे समझ में ना मैं करूँ क्या. अब मैं थिएटर भी नहीं कर पा रहा हूँ. लोग बोले तू सिनेमा कर ले, अब कोई मुझे भाई बना दे रहा है, कोई किसी का भतीजा बना दे रहा है, बोला आपको ज़्यादा पैसे देंगे, आप इसके भाई दोस्त के भाई बन जाओ या हीरो के दोस्त बन जाओ. मुझे बोला मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता. तो वो काम भी नहीं मिल रहा है, अब थिएटर भी कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है, पैसे भी खत्म हो रहे हैं. इट वॉज लाइक अ catch-22 situation for like 4-5 years. Because I wanted to do certain kind of films, they were not coming my way because there was no OTT that time. The only films you have to do to survive. So I did a few films. But then that actually was the problem. Like I actually wanted to stay away from films for a long time because I was enjoying theatre so much. No, I never wanted to do cinema because I knew that there is a lot of hierarchy. There won't be any roles. I'll be killing a lot of my time and I don't go anywhere. पता नहीं ऐसे सोच के बैठा हुआ था. तो मैं नाटक ही करना चाहता था. मुझे कभी कुछ मूवी स्टार नहीं बनना था या कुछ बहुत बड़ा फिल्म बना लूँ या मैं बॉम्बे हीरो बनने तो आया भी नहीं था. मुझे इतना था कि मैं बॉम्बे आऊँ, रोल मिल जाए, एक्टिंग से पैसे कमा लूँ, बस इतनी ही मेरी मंशा थी जो अभी भी है. बट द कंडीशनिंग ऑफ एवरीथिंग हैपन्स टू यू नो दैट एवरीबडी स्टार्ट्स टेलिंग कि दिस हैज हैपेंड टू यू, टेक इट सीरियसली, यू नो लाइक. तो वहाँ पे मैं ना 6-7 साल मेरे ऐसे निकले, मैं समझ ही नहीं मैं नाटक करूँ कि फिल्म करूँ तो कौन सा फिल्म करूँ. सो I've never been able to hack the system. How to get a role, you have to keep proving yourself every time and again to get to land. Like it's like a bit by bit, pieces by pieces, you have to string it together to get somewhere. So then I said, chalo, let it be only now. But now with the OTT and all, web shows and all, people are giving me much more better roles. And even that I saw OTT which had Priyanshu and you played this lean mean gangster. Yeah, Sheher Lakhod. Yeah, I mean, you guys nominated me for that. Very good, amazing. You were very good in that. But I think web shows has opened that for most OTT. Get respect. And here's hoping that you get many more roles. But I want to do films, you know. Films, I want to do films. Yeah. I think we can all do films and like great roles, great parts. Let's hope there are great writers and more directors who will grow. But I think times are changing. It will come, I think. No.
You have to just save. I feel like I We just need directors with more spine. Then I think. मुझे एक तो पहली चीज थी मानव के का जो जीवन है ना जो चल रहा है, जो अभिनय, एक्टिंग, किताबें, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे का ट्रैवल, उससे मुझे बहुत ईर्ष्या है। Yes, yes. मेरा जलन है। Perfect मुझे life. अगले जन्म में ऐसा जीवन चाहिए। मैं अभी कुछ महीने पहले इंदौर में इनकी माँ से मिला। इतनी प्यारी माँ, मतलब वो आंखों में, वो दोनों आंखों में मानव है ना। और ये तो ये जो किताबें लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, वो मुझे बड़ी पसंद है। पहली चीज तो ये हो गई। मतलब बुरी नजर नहीं रखता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बुरा हो, लेकिन बड़ा लगता है कि यार ऐसा मैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा 2-4 साल इधर उधर होंगे, हम उम्र ही है, लेकिन देखो कितना हसीन लगता है ये आदमी, कितने हसीन काम वो करता उसके है। जीन्स मेरी है, लाइफ सर। ऐसी क्यों नहीं है? वो उसकी कश्मीरी जीन्स है। इसको शाहरुख के बाप का रोल कोई नहीं ऑफर करेगा, मुझे ऑफर करते हैं। मैं छोटा हूँ शाहरुख से। तो खैर ये चीज हो गई, एक तड़प हो गई। real pain. रियल हाँ, है, अब क्या करूं मैं। तो मुझे एक तो लगता है सर कि ये जो पूरा चीज जो है ना, बधाई हो ऑनवर्ड जो है, मुझे एक सपना लगता है। और मैं कई बार ना, महीने में 2-4 बार मुझे ऐसा लगता है ये सपना टूट जाएगा। ये सपना बहुत अच्छा है। मतलब जो मुझे बधाइयों से पहले जो खुशियां क्या होती है कि आपके खर्चे जो हैं वो ठीक ठाक आप कर पाओ, घर वालों को सही कहीं घूमना घुमाना हो कर लो, महीने में 1-2 बार रेस्टोरेंट चले जाओ, और लोग जो मिले, अनजान लोग, वो प्यार से मिले आपको नाम से जाने। अनजान लोग यार, राव साहब क्या हो रहा है, मतलब ये इसकी खुशी में बयान नहीं कर सकता हूं मैं अभी। और ज्यादातर लोग जो मिलते हैं पिछले 2-4 साल में, वो तो ये बोलते हैं कि हमें तो किसी प्रोजेक्ट में आपका नाम दिख जाता है, पंकज त्रिपाठी का नाम दिख जाता है, तो हम वो नोट कर लेते हैं कि हमें ये देखना है। वाह। तो वो जो खुशी है ना, वो बड़ी गजब की है। मुझे लगता है ये 5 साल और चल जाए, मतलब ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं उसमें क्या करता हूं कि जो मुझे मालूम है कि शायद संजय लीला भंसाली के रडार में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि 1600 लोग पहले ऑलरेडी हैं वहां पर। वहां तक पहुंचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। या पुष्पा के डायरेक्टर के पास नहीं जा सकता हूं मैं, क्योंकि वहां पर वो अलग दुनिया है। या RR राजामौली साहब के पास शायद नहीं जा, लेकिन जहां पर ये मिसेस की डायरेक्टर, मुझे मिसेस देख के बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा यार इस फिल्म में होता तो कितना अच्छा होता, माइंड ब्लोइंग, कितना बढ़िया होता। क्योंकि मैंने ओरिजिनल मलयालम भी देखी है कि वो उसको ओरिजिनल मतलब अडेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है, वो कर लिया। तो मैंने वो जो डायरेक्टर हैं आरती, उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, DM करता हूं मैं, बहुत दिल्ली वाला हूं मैं, कि मतलब छोड़ता नहीं हूं, मुझे मतलब रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट है, प्यार से बुला लो, कुछ भी करवा लो। तो वो वैसे लोगों तक मैं अप्रोच कर लेता हूं कि जिनको मुझे लगता है कि हाँ, जो मुझे टालेंगे नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे, शायद जवाब दे दे। मैं ऐसे लोगों को मैसेज नहीं करता हूं जहां मुझे मालूम है कि वो DM में पड़ा रहेगा, वहां तक नहीं। तो ये यहां तक मैं कर लेता हूं। और मुझे लगता है कि 100 लोग होंगे, या मेरे एज ग्रुप में शायद 25-50 लोग होंगे, कि 100 फिल्में बन रही हैं, 200 फिल्में बन रही हैं, 100 OTT के शो बन रहे हैं। कहां पे क्या ही कर लेंगे लोग। मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि एक रोल के लिए एक एक्टर है, एक रोल के लिए 40 एक्टर हैं, 10 एक्टर हैं। तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस आपके पास होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप, कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, कोई जादू नहीं होने वाला है कि आपने सोचा कि मुझे इसके साथ काम करना है और वही आप अप्रोच कर सकते हो, आप मैसेज कन्वे कर सकते हो। स्क्रिप्ट आ जाए, 10 स्क्रिप्ट आ जाए, उसमें से 1 या 2 हो जाए, और उसके अंदर मतलब वो सनक भी तो है ना कि आपको सब कुछ अपने मन का भी तो चाहिए ना, कि मतलब इसके जैसा होता 25-30 साल में तो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता, मैं आलसी हूं, मैं बहुत, मुझे मन का चाहिए कि ढंग का होना चाहिए, माहौल, लोग अच्छे होने चाहिए, बहुत सारा सुबह 4 बजे उठा के रील ना बना दें। हाँ, नहीं होता यार, मतलब 2-4 दिन ठीक है, लेकिन कोई बोले कि 20 दिन सुबह 3 बजे उठेंगे, 6 बजे का शॉट है, तो मुझे नहीं करना है, मुझे माफ कर दो आप। 2 दिन करवा लो है ना। तो वो सारे उसी में चलता है यार। मतलब कोई बोल सकता है कि यार इसमें ऐसा कैसे है कि तुम तो एक्टर हो, तुमको तो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे नहीं रहना तैयार, मुझे मन चाहे लोग चाहिए काम करने के लिए। अच्छी स्क्रिप्ट हो, 19-20 हो, चल जाएगा, लोग बहुत अच्छे होने चाहिए। अभी बोलो कि जितेश बिल्ली डायरेक्ट कर रहा है
और इन 3 लोगों के साथ मैं राजी हूँ. There are a lot of demands in terms of social media and in terms of like you have agencies who have 8 actors and all those 8 actors are competing for the same roles. Yeah. So how do you hack the system now that you've decided, okay, I'm going to be an actor, I'm going to be here for the next 20 years or whatever. How do you hack the system in that sense, you know? I mean, मुझे ऐसा लगता है I might be completely wrong, but I don't think there is a system only. When it comes to it, there has never been a system कि आप Like for ये कर example, लोगे तो like, ये हो जाएगा. sorry to digress. For example, suppose you lose a role to a nepo kid. Let us say you're fantastic. You're on the top 3, but because of XY, because somebody's social media following is larger than yours, and you're very good at what your audition was great or this, but you've lost out. So does that create a sort of you know? I'm up against a wall. Does that happen? I See, mean, because your generation, all these are real problems. Like I don't think Gajraj ji will be competing with an Ibrahim Ali Patodi, or he will not be competing with a. Why not? Yes, मुझे लगा है बोलेंगे. Why not? He's not going to do Nadania, right? You never know. I'm saying these are real problems for actors like you. They all came at a time when social media was not so this thing. So is there added pressure? What does it do to your mental health? I mean, there is a pressure of social media because your agencies and everybody tell you that, and also your brands and all are very adamant that social media should be there. But also, वही मैं कह रहा हूँ, there is no system anywhere. They say कोई बोलता है ज़्यादा social media पे रहोगे तो काम नहीं मिलेगा because you're too exposed to the audience. फिर बोलते हैं कि अच्छा जितना देखोगे उतना बिकेगा. So there's two sides of everything. There is no system. There is a lot of, honestly, with your work, plus there is a lot of luck involved also. You have to be there at the right place at the right time. There are too many factors. Of course, you feel like sometimes you're up against a wall because 2-3 other things are, other people are getting considered over you, even though you think you're more talented. I can't break my head on that wall though. I can't really, मैं बैठ के अब उसके बारे में रो नहीं सकता हूँ. क्योंकि मुझे यहाँ पर जीना है, मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना है. I am not going to cry about it. I'm going to move on to the next project immediately. It is tough to find projects, but that's what and also your hunger really matters. Your hunger absolutely matters. Like he was saying na, that he's reached a stage where he can, Gaju sir can say कि यार मैं 4 बजे उठ के काम नहीं करना चाहता. Right now my hunger is so much, and also I'm not established as well as Gaju sir that मुझे 2 बजे उठा लो यार. Because I like to be on set. I still think I need to spend a lot of time on set to get bored. To get, मतलब बहुत अभी I'm very very happy going on set. I love the set. I hate going back home sometimes. So the pressures don't get to you, basically. It does, but you have to really, you can cry. एक दिन रो सकते हो, 2 दिन रो सकते हो, तीसरे दिन उठ के काम पे चलो भाई. There is nothing else because that gives me happiness. That's what I'm here for. But I genuinely think no one can hack the system. अगर if we had this rule book, this kunji or whatever, कि system कैसे hack करते हैं, ये system is defined like that, everybody could do it. बड़े-बड़े producers नहीं कर पा रहे हैं तो फिर No, you navigate around things. you try everything, but it's आप इधर से सुनोगे उधर सुनोगे, you'll try this also, you try that also, you try that also, realize it's your own way you have to find. किसी और का रास्ता नहीं दे सकते आप. एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेशन दिखाते हैं किसी के लिए तो वो प्राइस एकदम से कम कर देते हैं फिर. अच्छा ये बहुत इंटरेस्टेड है, अच्छा फॉर एग्जांपल 10 रुपए से बात शुरू हुई और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, 2.5 में बात कर, 2.5 में करेगा क्या? तो उस लेवल पे कि मतलब ये क्या लॉजिक हुआ यार, आपका बजट है ना 10 रुपए, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे दे दो 10 रुपए. अगर मैं ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ तो 2.5 रुपए दोगे? मैं मेरे इंटरेस्ट की वजह, मेरे पैशन की वजह से, मेरे पैशन की कीमत 7.5 रुपए काट लोगे आप. Did you feel Badai Ho would be your that real breakthrough? Did you? Absolutely. While you were shooting, आपको नहीं आपको शूटिंग के टाइम आपको लगता था? नहीं. I think किसी उस समय लग रहा था कि हैप्पी माहौल है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, क्योंकि वहां पे खुशियां थी सेट पे, बहुत ज्यादा कॉमरेडरी थी, बहुत हार्मनी थी सभी के बीच में. आयुष्मान, सान्या, नीना जी, हम सब मतलब बड़ा मजे कर रहे थे. लेकिन वो शायद 17 या 18 अक्टूबर के दिन 2018 मतलब जो स्क्रीनिंग, फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद वो जो साउंड आते हैं ना,
वो पहला स्क्रीनिंग तो मेरा ब्लैंक में चला गया था। अच्छा तेरे भाई ने ठीक किया। और आपको ट्रेलर के बाद नहीं लगा कि नहीं, there was such a big नो, क्योंकि असली ड्रामा जब अनफोल्ड हो रहा है और वो क्योंकि कलेक्टिव, और ऐसा नहीं I कि think none of us मेरे would- अच्छे काम करने से हो गया, किसी को भी नहीं Collectively लगता सबका करते हुए काम कि ये इतना कुछ हो खूबसूरत जाएगा। था। I think none of us would- मतलब 20-20 40-40 की फैमिलीज गई हैं देखने के लिए फिल्म, 2-2 बार गई हैं। दिल्ली में गुड़गांव मेरे दोस्त हैं, वो 25-30 का ग्रुप 2 बार जाके आया है। लोग व्हील चेयर पे, बहुत सालों बाद मैंने देखा कि व्हील चेयर पे लोग हैं जो वो जा रहे हैं सिनेमा देखने के लिए। वो कलेक्टिव व्यूइंग का, वॉचिंग का, वो तो कमाल का क्रिएट कर दिया। As actors, are there things which are non-negotiable in your life? I will do this, I will not do this. Are there any things that you're very, very conscious about? Like, I think what he did for the LGBTQ community, when actors like Ayushmann and Fawad Khan and all of that. Now that was these were roles which a lot of actors had said no to. Yes. For example, शुभमंगल Having a- मेरा पार्टी कुछ लोगों ने मना having किया a था। child 24 years after marriage, or you playing a stripper, Yeah. when it was hugely, all these are challenges, these are like stuff that other actors may not say yes to, or even his role could have been very unsympathetic. But he walked that little fine line. You always think, in my head, even when I was watching the film recently, I was like, was it? But yes, it was a big enough reason for her to. But the way he played it was so that's what I'm trying to get at. Is, are there like non-negotiables and stuff like you will do and won't do? एक ही चीज़ है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ कभी, और आई हैव सेड नो टू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, विच इज़ कोई भी आर्ट फॉर्म अगर सोसाइटी में पीस एंड लव इंजेक्ट नहीं कर रहा है एंड हेट्रेड इंजेक्ट कर रहा है, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज So you won't play a terrorist? Is that no, what I you're saying? played terrorist. I played Kashmiri terrorist in Wazir. Okay. I played Hindu extremist in this thing, Kai Poche. I played every kind of role. But the thing is, the story is injecting what? It's injecting peace. It's The politics of the film. politics of. हाँ. So character- if part you are party. if you are injecting as a story hatred or something that trigger, I don't want to be part of that, because our job is to absolutely make sure that we leave a better place, better world to next generation. So basically, you're saying artists must have a social responsibility. some sort मतलब of मुझे लगता है मेरी है, I don't say कि सबकी हो, सब अपना अपना करें. Correct. मैं किसी को क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सबके अपने वैल्यूज हैं, सबके अपने, और सबका अपना सोचना है, बिकॉज इतना पोलराइज सोसाइटी है, Correct. इतना एल्गोरिदमिक बेस्ड है अब तो, Correct. कि कोई किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा है. सो द आइडिया इज, आप जैसा सोचते हैं आप बढ़िया, मैं ऐसा सोचता हूँ, सो आई वोंट डू दिस, आई विल मेक श्योर दैट आई विल डू थिंग्स विच आई विल इंजेक्ट पीस, बिकॉज मेरे को खाना ही चाहिए और रहना ही चाहिए. मैं 10 काम नहीं भी करूँगा चलेगा मुझे, एंड आई एम अलोन, सो आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Do you have such any do's and don'ts, Paveri? I don't want to harm an animal on camera and call it to be justified for sure. So that's something I wouldn't ever want to do. And one thing that I have a problem with, that I generally don't take up on set, is that you can ask for anything in the world. मतलब these tangible things can be adjusted कि अच्छा ये है वो है दुनिया भर की चीज़ें, बट अगर कोई बदतमीजी से बात करेगा, so आप no matter who you are, I can't work in that environment. मुझसे नहीं होता है. Then I get very inhibited more and more and more, and then I can't work in that. I don't get the freedom to talk or to express myself. So if anybody talks to you with बदतमीजी, because I don't talk to anyone in बदतमीजी, कोई बदतमीजी से बात करेगा, मैं नहीं दे सकता. आप इज्जत दे दो और कुछ भी लेना ले लो, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. So So that there's two triggers things. you. Yeah. That triggers you. And I make sure whenever I'm on a set, I've seen every time we go to a small town, a small village, beautiful mountain, river, and Hindi. We are film industry, we are shooting a film and people start littering. तो प्लास्टिक के बॉटल पानी फेंक, मतलब क्यों कर रहे हो यार, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, एक डस्टबिन लगाओ. मैं आधे टाइम तो बॉटल उठाने में चला जाता है मेरा. वो डस्टबिन प्रोडक्शन बोलो भी डस्टबिन लगा दे, लोग फेंके. Because I have 99% time when I've gone to a village to shoot, it's very clean. It's mostly clean anywhere in India. But whenever we go to shoot, I don't know why we litter.
we just I don't think अभी treat that बेटर हो place- रहा है थोड़ा सा, better हो रहा है। लोग बहुत I ख्याल think वो रखते हैं। एम्पैथी थोड़ा अगर और आएगा तो सही बात। पता नहीं, एम्पैथी नहीं होती, मतलब कि किसी से कैसे बात करनी है, या आप किसी के घर में आए हो शूट करने, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ है फेंक दिया, छोड़ दिया, आपका काम हो गया। आई थिंक इट्स वेरी सेल्फिश वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स, एंड आई हैव सीन दैट, सो आई एम मोस्ट करते रहता हूँ कि देखो, डोंट लिटर, लुक आफ्टर द नेचर, डोंट थ्रो थिंग्स। फॉरेस्ट में शूट करे, बॉटलें फेंक दी, पानी पी के फेंक दी, खाना खा के वहीं छोड़ दिया, वेस्ट फूड, पीपल वेस्ट फूड सो मच ऑन सेट। आई मीन इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, बट आई मेक श्योर दैट जितना मुझसे हो सके मैं बोलता हूँ विद लॉट ऑफ लव दैट मेक श्योर यू डोंट वेस्ट फूड, डोंट लिटर, प्लीज लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट यू आर इन कॉन्शियसली। दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड मेक श्योर। जी चीपनेस अगर है, स्लीज है स्क्रिप्ट में, इंटेंट वो है क्रिएट का, तो वो मैं मना करता हूँ। वो मुझसे चाहे भले मेरा कैरेक्टर वो नहीं कर रहा है, कहीं और हो रहा है, आसपास हो रहा है, तो वो मुझसे नहीं होता है। मुझे वो देखना पसंद नहीं है, वो करना भी पसंद नहीं है। और तो कई बार मुझे ये एक चीज़ हो गई, इसका एक दो पॉइंट और हैं। मुझे को एक्टर्स बड़ा फैसिनेट करते हैं कि कौन कौन है प्रोजेक्ट में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा उनके साथ कटेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोल दिया जाए कि मानव कॉल है, तो मेरे लिए वो सर्टिफिकेट है कि मानव ने मेरे बिहाफ पर ड्यू डिलीजेंस सब कर लिया, तो ये सही प्रोजेक्ट होगा। या जैसे नीना जी बोलेंगे अच्छा गजराज जी अब ये वाली स्क्रिप्ट सुन लो, ये हाँ सही मुझे रोल ठीक लग रहा है इसमें, अच्छे लोग हैं, मेरे लिए वो सर्टिफिकेट है कि हाँ ये मेरे ना मतलब 50% प्रॉब्लम चली गई कि हाँ ये करेक्ट, ये लोग भले मैंने उनके साथ काम किया है नहीं किया, ये काम कर रहा है, ये बंदा है तो ये, या ये बंदी है इसमें, तो ये ठीक होगा। और तीसरा जो है नहीं मतलब जो करने का, नहीं करने का एक हो गया, करने का है मेरा कि अगर कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में करे शूट और या जापान में करे, तो मैं 25% डिस्काउंट दूंगा अपनी फीस में। मेरा बड़ा मन है कि स्वीडन में शूट करूं। But I think what he said, no, he's very clever. मैं भी यही पूछता हूँ कौन है। हाँ। अच्छा, तो लगता है Assurance हमारा काम में, कम हो क्योंकि गया। मेरे ब्याह पे Script किसी ने आने से कर लिया। पहले। Yeah. अच्छा, शूट कौन कर रहा है? But थोड़ा, do I you think all आसान हो seriously जाता है। get affected by bad co-stars and all, or it's mind over matter? नहीं मुझे नहीं, अगर वो कलेश नहीं चाहिए 20-25 दिन का। एक मतलब मुझे वो लोग भी बड़े बदतमीज लगते हैं जो कमजोर है ना, जो सेट पे एडी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट का एडी, उनसे गाली गलौज करते या उनसे कपड़े फेंक दे उनके ऊपर, ये क्या है, प्रेस क्यों नहीं है, क्या बोला था, इडियट। मुझे ना वो खत्म हो जाता मेरा ना, उससे मतलब लगता है इस एक्टर के साथ मुझे अभी जिंदगी में कभी काम नहीं करना है। ये मेरे लिए बड़े और अभी भी 24 दिन बाकी हैं। अभी भी 24 दिन बाकी है। So what were like, because you are talking about actors, what are the kind of films that you all grew up on? Were there any actors whose trajectory, career, like it looked, this is the kind of life ideal? बचपन तो मतलब जो है ना, सपने जो देखे वो बच्चन साहब, धर्म जी, वो जो एक्शन जो आपके बिहाफ पर मतलब क्लास का बुली आपको घुसंड मार रहा है और आप मन ही मन में सोच रहे हो कि बच्चन साहब बोलते ना मारते इसको जोर से, तो वो 10-12 साल तक तो ये रहता है, ये रहा। फिर उसके बाद जब फिल्म फेस्टिवल्स में पिक्चरें देखना शुरू की ना, तब नसीर भाई समझ में आए, नसीर भाई, कर्नाड साहब, ओमपुरी। मुझे लगा कि हाँ ये जो है ना, ये जो जिस तरह का काम कर रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए काम जिसमें कहानी है, जो आपको क्या बोलते हैं, एक अलग किस्म की खुशी दे रही है। Is there one film that has left an impact on your life and you would have probably want to direct or be part of that film? मंथन मतलब वो लगता ही नहीं कि कोई कहानी बोल रहा है, वो लगता है कि कैमरा गांव में रख दिया है, सोसाइटी बनेगी, सिसोटी. Yes. गोविंदा मतलब हमारी अपब्रिंगिंग का स्टार गोविंदा था। Yeah. हाँ, बच्चन साहब, गोविंदा, देन बहुत जब मैं बॉम्बे आया तो शाम में निकल की फिल्म से इंट्रोड्यूस हुआ, एंड देन अमरीश पुरी साहब, ओम पुरी साहब, ये सब आपके जीवन में। लेकिन मोस्टली हम लोग हाफ टाइम ड्रंक रहते थे और गोविंदा के गानों पे नाच रहे होते थे। I mean, it was a fun life। तो उस समय सब यही अच्छा लगता था ऐसा। एंड ऑल्सो आई डिड
मैं जब बॉम्बे आया तो मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया था कुछ फिल्मों Wow, में। really? तो एक फिल्म में मैं जूनियर आर्टिस्ट था, गोविंदा की फिल्म में। कौन सी? कोई सी नंबर 1 थी, सम नंबर 1 हीरो। तो वो रावण बने थे, मैं राम बना था, और मुझे 700 रुपये बोला था, प्रॉमिस किया था मिलेंगे, और मैं राम बन के थोड़ी देर उनके साथ एक्टिंग किया। तो मुझे लगा कि वाह, मतलब वो बहुत लेट आए और फिर वो शॉट नहीं हो पाया, और मैं 700 रुपये लेके चला गया। लेकिन अंत में ये हुआ कि मैंने एक बार तो किया उनके साथ। तो मैं जूनियर आर्टिस्ट उसमें किया था, चैंपियन फिल्म में सनी देओल के साथ जूनियर आर्टिस्ट किया था। सो आई डिड जूनियर आर्टिस्ट काफी। Very nice, very नहीं, nice. उसमें ताली वाली Very nice. I mean, Govinda is No, big but deal, also no? it was lot of fun because I was part of चौल में रहते थे। जैसे कैसे जो है खाने का जुगाड़ हो जाए, और हम 3 लोग रहते थे, कोई भी एक कमाता था, तीनों का होता था वो। तो किसी को कैसा भी काम मिलता था, it used to be to celebrate it in the night. मतलब ऐसा सेलिब्रेशन होता था रूम पे, ऐसा लगता था हमारी फिल्म हिट हो गई है। क्योंकि उसी समय शाम को ही 700 रुपये मिल गए, और 700 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे को जूनियर आर्टिस्ट मिलने लगा था काम, तो मैंने कहा ये आई हैव अराइव्ड। मैंने बहुत काम किया। So how long were you a junior artist? नहीं, नॉट ऑफिशियली, बट वो जो था ना पीछे से भाई हाँ. करवा दे। So how many films like that did you do? आई थिंक 3-4 फिल्म्स आई हैव डन। उसके बाद थिएटर से मतलब ऐसे ही था कि असिस्टेंट कर लो, ये मैं तो सबके लिए रेडी रहता था। एक किसी डॉक्यूमेंट्री पे मैंने पूरा 20 दिन रोड साइड असिस्ट भी किया था, वो सब लिखना, ये लिखना। बट क्या होता है, बिकॉज एवरी वन वॉज लाइक दैट अराउंड मी। ऐसा नहीं था कि मैं किसी एक अमीर आदमी को जानता था जिसको देख के जेलसी हो रही है। हम सबके पास पैसा नहीं था, सब गरीब थे। तो इतना मजेदार लाइफ थी कि जिसके पास आता था सब सेलिब्रेट करते। एंड आई थिंक दैट टाइम आई हैड सो मच फन इन लाइफ। मतलब वन ऑफ द बेस्ट टाइम हमने गुजारा है। अप्पा पड़ा, आई स्टिल रिमेम्बर चौल मलाड में हम लोग रहते थे। गोविंदा का इम्पैक्ट मेरी जिंदगी में भी रहा कि लोअर मिडिल क्लास थिएटर करते हुए आपके पास फैशन आप कर नहीं सकते थे। आपको जो मिला सरोजनी से, जनपद मार्केट से 250 के 3, वो अपने उठा लिए आपने, और वो अलग अलग मिसमैच करके आप पहन रहे हो। तो वो अब जब थिएटर ग्रुप में जा रहे हो साथ में, तो वहां पर आपके कुछ रईस कलीग भी दोस्त भी हैं। लेडी श्री राम कॉलेज, हाँ, रईस आपके जो जेएमसी जीजी मेरी कॉलेज की लड़कियां आई हैं, वो जो पता ही नहीं क्या आपके कपड़े पहने हैं। साथ के थिएटर करने वाले हैं, उनसे आपको आपके जो अलग रंग हैं वो ज्यादा अंडरलाइन होते थे। उसके बीच में क्या हुआ कि दिल्ली के प्रिया सिनेमा में गोविंदा की फिल्में लगने लगी। गोविंदा की फिल्मों में वो जो साउथ दिल्ली का वो जो क्राउड था, जिनके सारे मैचिंग वाले कपड़े होते थे और जो खुशबूदार परफ्यूम लगाते थे, वो सब लोग वहां आते थे। सडनली वो जो लाल पीले कपड़े इन हो गए, वो ऑड नहीं रहे। तो वो उसका वो एक मेमोरी में मेरे है कि हाँ, कि ये जो थोड़े से एलीट जो क्राउड था जान पहचान का, वो भी गोविंदा को पसंद करता था। मतलब उसमें कहीं बेचारापन नहीं था उसके अंदर, उसको वो भी सेलिब्रेट करते थे जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। So is there that one film that you would have loved to act in or be a part of? Is there like I mean, Sparsh, 100%. कौन सा? Sparsh. अगर कोई बनाए तो मजा आ जाएगा। Make it or act in it? I'll act in it, of course. मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना जिनको जीने का सुख है, वेदर वो रिलीज हो नहीं हो डजंट मैटर, बट आपको ये एक फ्रीडम मिल जाए कि आपने जिया, वो एक कैरेक्टर जिया, वो बहुत सुंदर है। मतलब ऑल्सो एक्टिंग सो थेरेप्यूटिक। मुझे लगता है आप कुछ और जी के जब वापस आते हो घर पे, उसका सुख जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप ही जानते हो। एंड देन यू जस्ट सिट विद दैट थॉट दैट आज जो किया, आज जो जिया, आज जो एक सीन किया, ओह, उसकी खुशबू ही बहुत सुंदर है। तो मैं इसलिए एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। व्हेन आई डू समथिंग, तो शाम को एक ड्रिंक के साथ बैठो आप अपने रूम पे, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। काफी इंटरव्यू में भी इतनी अच्छी बातें करते Yeah. हैं। तो देखिए इंटरव्यू साथ में, मैं ऐसे कर पाऊंगा कभी क्या? Yes, Mr. Sanyal. Well, one thing I would start with that, you know, when I also came to Bombay, and when I came to Bombay, I met Manav then. He was already here. He had some friends who were my roommates.
and we had the same kind of life, like nobody had money, so I went back to that time because what happened was since none of us had money, तो क्या होता था अगर एक के पास पैसा आ गया ना तो चिंता थोड़ी दूर हो जाती थी कि और हम लोग का ना वो फ्रिज में फ्लोर बटे रहते थे, अलमारी में फ्लोर बटते थे। अगर अलमारी है ना सिर्फ 5 तो सबका एक एक, मतलब आप सोचिए मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक फ्लोर के ही कपड़े थे ना, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जितना एक आपके अलमारी के वो लोहे की अलमारी में जो एक फ्लोर होता है ना, जो भी एक शेल्फ होता है, उतने ही कपड़े थे लाइफ में। उसमें 2 अच्छे कपड़े थे और 2 घर के रोज़ रात को पहनने वाले कपड़े थे, उतने ही थे और खुश थे। रोल छोटा है या बड़ा है, मैंने भी ये छोटे मोटे इधर उधर कहीं वेटर कहीं ये सब करते थे, 500-700 रुपये, तो ऐसा कभी नहीं लगता कि ये बन जाऊँ, वो दिखता ही नहीं था। और वो जो खुशी जो मिलती थी ना, अब साथ वाले का भी जो रूममेट रात को लाल बत्ती जला के लेटे हुए आबिदा परवीन बज रहा है नशे में, और फिर किसी ने बोला यार कल सुबह मुझे जाना है, 7 दिन का काम मिल गया, 7 दिन का काम मिल गया, मतलब अब अगले महीने का किराया वो अगले दे देगा तो अपन बच जाएंगे। तो इट वॉज अ लॉट ऑफ कमाडरी एंड यू ऑलवेज वॉन्ट ईच अदर टू ग्रो, लाइक ये भी बढ़े तो हमारा हो जाएगा। एंड उसमें क्या होता था, एक निकलता था ना फिर वो नेस्ट से निकल जाता था, ऐसा होता था कि 5 लोग हैं फिर एक का अच्छा हो गया तो निकल जाता था। Were there any of the guys who hit big time or something along with your, like people who, your roommates or something where you were very happy with their? Not many. I had a very good friend who was my roommate and he went back to Daltonganj and he's making चूड़ी, वो चूड़े का बिजनेस करता है। ऐसे बहुत सारे जो मेरे पुराने दोस्त थे वो सब खो गए, इधर उधर चले गए, घर वापस चले गए, तो वो बड़े खुश होकर फ़ोन करते हैं कि ये देखा वो देखा। So anyway, so that was the thing where I went back. So the films which I grew up on, like my hero was Mithun Chakravarti, always, because I come from a Bengali family. For us, Mithunda was a god, From I had seen every film. I used to write letters to his Juhu address. I still remember it was 702 Guru Nanak View, JVPD scheme, Mumbai. तो मैं चिट्ठी लिखता था चक्रवर्ती को बचपन में स्कूल से कि आपकी ये फिल्म देख, तब वो मायापुरी ये सब उसमें एड्रेस आते थे स्टार्स के। कभी रिप्लाई आया क्या? नहीं, रिप्लाई नहीं आया कभी, बट वो कितने फैन मेल्स आते, बट उस टाइम फैन मेल्स था बचपन में। आई एम टॉकिंग अबाउट 87, 88। तो कोई फिल्म देखी, प्यार का देवता, मतलब आई हैव सीन हिज ऑब्सक्योर फिल्म्स, भ्रष्टाचार। Oh my God! भ्रष्टाचार I've seen with all the speaker and all that. Those are the kind of me, films, those films were like my encyclopedia. Yeah, भ्रष्टाचार and प्यार का देवता and गुनाहों का सौदागर and all these were my films. लोहा। बाद में जब मैं नाटक गया तो फिर मैंने थोड़ा कुछ सीरीफोर्ड ऑडिटोरियम में कॉलेज में थोड़ा, मैंने ये तारकोस्की क्या होता है, सो गए लोग, उठा, ये समझ भी नहीं आया। सो मेरे लिए मिथुन चक्रवर्ती था। आई थिंक आई रिमेंबर वॉचिंग मासूम एज अ किड, that made me cry a lot, that and Mr. India. When the kid died, वो really small, तो थिएटर में सारे बच्चे थे हम लोग, और जब वो मरती है वो बॉम्ब ब्लास्ट में मासूम में मिस्टर इंडिया में, that like I realized the power of cinema then. And later on when I went to college, as you move on things change. I saw Bandit Queen. I was in class 10th, हम Bandit Queen देखने गए, सारे मर्द भरे थे उस थिएटर में, शीला थिएटर, ऑल मैन, ऑल लाइक मैन, लाइक 9:30 शो, समझ रहे हैं आप, कि सब नग्नता देखने गए हैं टाइप्स। तो हम लोग फ्रंट स्टॉल में बैठे थे और फिल्म शुरू हुई एंड द फिल्म स्टार्ट्स। एंड आई रिसेंटली वर्कड विद सीमा विश्वास, आई वर्कड विद हर रिसेंटली, शी वाज टेलिंग मी स्टोरीज अबाउट देयर प्रोडक्शन, हाउ शेखर कपूर, बोले शी वाज सेइंग आई वाज डूइंग अ सीन और अशोक मेहता और शेखर कपूर पानी के अंदर खड़े हैं, मतलब उसका इतना आंखों का शॉट था उनका शायद, तो वो भी उसी लेवल पे खड़े पानी के अंदर कैमरा लेके दोनों। दैट वाज द डेडिकेशन। वो फिल्म देखी थी मैंने बैंडिट क्वीन, अलग तरीके की सिनेमा, क्योंकि सारे मर्द गए थे कि पता आया था कि देयर इज लॉट ऑफ न्यूडिटी, ये वो तब तक इतना शुरू नहीं हुआ था ना मेन स्ट्रीम फिल्मों में। तो जब फिल्म खत्म हुई ना, एवरीबडी वाज, सबके ना कंधे झुक गए थे, all the men. I saw the transformation in men after like 300-400 people, all men coming out, and I was a teenager. I was so like everybody was furious, everybody felt the pain, everybody was in rage for Fulan. So that was a very impactful film. So I think with time the taste also changed. Then I saw Satya and Rangil around the same time, and that's when I decided to become an actor. When I saw Manoj Bajpayee playing Bhikhu Mathur, मैंने ये अलग लगता है, ये हीरो तो देखे हैं, मिथुन दा सब हीरो होते थे ना, ये क्या किया इन्होंने, मतलब वो सुर समझ में नहीं आया मेरे को। तब मैं नाटक कर रहा था,
तो वो जो मनोज वाजपेयी ने सुर लगाया था ना भीखू माथुर ने, तो मुझे लगा ये मैंने कभी नहीं देखा है, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, यू नो. दैट गेव मी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड देन आई केम टू बॉम्बे टू बिकम एन एक्टर. दीज आर द डिफरेंट फिल्म्स. Nice, nice. Yes, Mr. Gulati. ये तो बहुत भारी भारी बोल गया है. I have been a 90s kid. I've grown up on Shah Rukh sir, and it's like how Mithun sir has been God to him. Like Shah Rukh sir has been not just on screen but off screen. His interviews, him interacting with numerous number of people and stuff. And also, I call myself, like me and my friends call ourselves that we come from the Shah Rukh Khan School of Chivalry. I think because the way he, at least what we see in front of the camera, how he treats women and how he, जब कोई award function होता था, film fair होता था, he used to come and lead the girl all up to the stage or drop them down and all those things. I think that man was, like growing up, was not just a filmy figure but also an off-screen figure that you want to look up to and you want to become like this. You can't become him, but you want to become like that person. So yeah, I think Khan Saab had this, and I think he still does. Like even today, if I see him, like I'm one of those people, if I see him, I'll probably run out because I wouldn't want to face him. And if there's one film that I think I really connected with this film called Yes Boss. It's not a film that people actually talk about. It's a wonderful film. Like I love that film. I think मैं स्कूल से आता था और मेरे Yes Boss की कैसेट थी एंड मैं वो लगाता था और मैं 1 घंटा बस कमरा बंद करके सिर्फ नाचता था उस पर. और मैं इतना नाचा था कि मुझे 3 कैसेट लेनी पड़ गई थी कि पहली 2 घिस गई थी. So that film was something that I grew up on completely. Nice. And finally, I want to know how do the women in your life react to, like, how do your kids, for example, or your wife, सब दिन मंगवाती मुझसे आज भी भुट्टे. नहीं, but you know, उन्होंने आपका struggle शायद साथ में देखा है, and you know there is, and how do your kids have seen your struggle as well. You said your son is 28, so you know you were struggling as this actor. So how do they react and how have they been part of this journey? आई गेस मेरे लिए मिरर्स हैं, वो आईना है मेरे, तो वो मुझे रियलिटी चेक देते रहते और उड़ने नहीं देते बहुत ज़्यादा. कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, गलत फहमी पाल लूँ तो वो उसको कट कर देते हैं वहीं पर. अच्छा, मुझे एकदम से याद आया, कैन आई से, आई थिंक वो ब्रिलियंट इन तलवार. वंडरफुल एक्सपीरियंस. मई जून गर्मी के तलवार दिल्ली में वाज शूटिंग, सुपर, तलवार वाज मेघना गुलजार खत्म. वो अगेन वहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये रहा जिसका मेरे रोल से कुछ लेने देना नहीं था. एक फीमेल डायरेक्टर, उसका प्लाटून 15-20 का, और वो मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं. मतलब बहुत रेयर, आमतौर पर क्या होता है, गर्म मौसम या बहुत सर्दी या बहुत बारिश या बहुत भीड़, तो उसमें कुछ लोग चिकन आउट करते हैं, पीछे चले जाएंगे वॉकी लेके, अपना कुछ और काम करेंगे, मतलब कर लो तुम लोग. यहाँ पे वो जो 15-20 एडी थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो मेघना के साथ ऐसे मुस्तैद खड़े थे वहाँ पर पूरे शूट में. तो वो शो करता है कितनी अच्छी लीडर रही होगी उस प्रोजेक्ट. बहुत सही फिल्म है वो, बहुत सही. Do you all feel that the same way, like the feminine gaze is different from the male gaze when you work with female directors? I Have love you working felt with that? female directors. Absolutely. उनमें ना एक वात्सल्य रस, एक ममता होती है. I was doing this film called Manto with Nandita Das and we were shooting in the night. गुजरात के किसी गांव में, और सब नॉन एक्टर्स थे. नवाज उनका एक कोई स्पीच था और हम लोग सब बैठ के सुन रहे हैं, ऐसा एक सीन था. और सारे गुजरात के गांव वाले आए हुए थे. ठंड थी, रात के 3-4 बज रहे थे, सो जा रहे थे. They were all village walas. I remember she got on stage and she spoke to them in Gujarati and spoke like a mother. I was like, मतलब मैं गदगद हो गया था. मतलब सब जग गए. Not like अरे उठे क्या हो रहा है, जैसे होता है ना, अरे सोना नहीं है चले उठे, एडिया गए, अरे कोई सोना करे, ऐसा होता है ना, चलो चलो चलो. But she spoke like a mother. She spoke with lot of love and after. So I think women directors have a lot of love. I worked with a few. They're amazing. Have you all worked with any female directors? आलिया के साथ हमने किया काम. आलिया सेन. Okay. ट्रायल पीरियड. Okay. अच्छा, Did हम you लोग साथ में काम करते did you थे. sense, because also you're a director, did you sense the feminine gaze and the male gaze is different? I think natural होना चाहिए कि
बहुत फीमेल डायरेक्टर्स होने चाहिए, नेचुरल ये बात होनी चाहिए, लेकिन वो इतना कम है कि हम जब भी होते हैं ना तो हम चेरिश करते हैं, बिकॉज वो इट्स डिफरेंट आई, इट इज़ अ डिफरेंट आई, बिकॉज इट्स मतलब वो कॉम्प्लेक्स, वो जो जहाँ से जो मेन वर्ल्ड है, और जितना हम लोगों ने अपनी माँओं को बहुत अच्छी दाल बनाती थी की तरह सीमित रखा है, तो वो वर्ल्ड बहुत सुंदर है। वो तो हम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरे ये बड़ा अच्छा देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छी चीज़ पकड़ रहे हैं, पर मुझे लगता है वो नॉर्मल हो जाना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, फीमेल डायरेक्टर्स ज़्यादा आनी चाहिए, बिकॉज दे हैव एक्चुअली ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो हमको और मिलना चाहिए। Yeah, coming to my last question, how your family, I was talking about your family. हाँ शार्प बंदा है, 10 मिनट घुमा के गलियां घुमा के वापस हमको वहीं पे लेके आ गया। No, but did your wife ever want to leave you because maybe your career was direct? Your career. मैं तो चाहता हूँ ऐसा जीवन, ऐसा अकेला। No, what I'm saying is, कि you know I'm fed up. I can't handle this daily struggle. ऐसा has it ever happened? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं मेरी वाइफ के साथ मेरी पहली मुलाकात क्या हुआ था, मैं वहां से बता दूं, कॉन्टेक्स्ट बता दूं। हाँ। मेरे एक तरफा थिएटर वाले रोमांस जो थे, इश्क जो थे, वो फेल हो गए सारे, जो मुझे लगता कि एक तरफा थे। हाँ। उस समय लगता था कि दो तरफा है, लेकिन वो शायद एक तरफा थे। हाँ। और मैं बड़ा खोया रहता था और चुप रहता था। मेरी माँ ने अचानक एक दिन देखा कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, तो मेरी माँ ने बोला कि मैं एक लड़की को मिली हूँ एक शादी में, तो मिल ले। तो मुझे लगा यार मैं प्रोग्रेसिव थिएटर करता हूँ, ये क्या जहालत है, मतलब मैं लड़की को देखूं, मतलब क्या है ये। लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार माँ जो होती है ना, उसको आप मना नहीं कर सकते, बोले आखिरी बार, पहली बार और आखिरी बार, चलो क्या ही फर्क पड़ेगा, पीछा छूटेगा। मैं मिलने गया जोधपुर और वहाँ पे कुछ बातें की, नसीर भाई, ओमपुरी, शबाना जी, ये सब बातें हो रही हैं। मैं थिएटर, मैं अपना ज्ञान मैंने बघारा, क्या जानता हूँ मैं चीज़ों के बारे में, मेरी दुनिया कितनी अनसर्टन है, थिएटर, कमाई नहीं होती है। ये शायद अगस्त की बात थी। तो उन्होंने बोला कि वो सब ठीक है, नवंबर में शादी कर सकते हैं क्या। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं नहीं, दीदी की शादी नवंबर में फिक्स हो गई है, अगर साथ में हो जाएगी तो मम्मी का खर्चा बच जाएगा। मेरे ना मतलब वो 3 इडियट्स में वो जो शर्मन जोशी का जो घर का माहौल वैसा सितार बजा। मैंने कहा ये क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई दुनिया। तो इतना दुख। तो मतलब अगेन उनके फादर साहब फौज में थे, नहीं रहे, 4 बच्चे। तो वो कॉन्टेक्स्ट है कि जिसने जिंदगी को उस दूरबीन से देखा है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, 150 स्क्वायर फीट का, वो तो मुझे छोड़ के जाएगी ही नहीं। तो वो तो मुझे हमेशा ईंट पे ऐसे हाथ रखा हुआ। कितना मैं कई वो बीच में आते हैं ऐसे टाइम ना कि नहीं यार ये गैप आ गया लंबा, कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं हो पाएगा कुछ, या जैसे कोविड के टाइम पे कोई बात नहीं, चले जाएंगे जोधपुर, चले जाएंगे उदयपुर, चले जाएंगे, कुछ और करेंगे, कर लेंगे। कि मतलब मैं नेगेटिव या पेसिमिस्टिक बातें करूं उससे पहले ही उसके पास सोल्यूशन है। कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। इतना एक्सट्रीम में तकलीफ देख रखी है उस महिला ने कि उसके लिए ये सारी मेरी जो तकलीफें छुटपुट होती हैं वो मैटर ही नहीं करती। और वही रिफ्लेक्ट किया बच्चों के ऊपर। तो वो भी बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होते हैं, खुश होते हैं, कपड़े पहना देते हैं मुझे, दोनों बच्चे मिलके, ये वाला ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा। मेरी इतनी सेंस है नहीं कि लाल पे ये वाला शर्ट जाएगा, या ये सिनेमा से आ रहे हो ना, या ये जूते पहन लो। हाँ, उनके जूते आ भी जाते हैं मुझे, मेरे जूते उनको आ जाते हैं। तो उस लिहाज से ठीक है। मतलब परिवार के लेवल पे वो वाला स्ट्रेस नहीं है कि प्रूव नहीं करना है मुझे। कुछ गड़बड़ हो जाती है ना तो वो संभाल लेते हैं वो लोग, मुझसे ज्यादा संभाल लेते हैं। Wow, that's nice. कुछ फ्लॉप हो गया, खराब काम हो गया, मैं बहुत शर्मिंदा या तकलीफ में होता हूँ, वो तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। आपने 6 काम अच्छे किए थे, ये खराब हो गया, अगले के अंदर थोड़ी और मेहनत कर लेना। Yes, now to all the chronic इनके तो पूछने की bachelors. जरूरत ही नहीं है। ये तो समुराई हैं। So, Mr. Samurai, is it easy for a non-film person to date an actor? Do they come with a lot of reservations in their heads? Have you dated actors, or have you dated non-actors, like people not? Is it easier to date
I mean, and how has it impacted your relationship? आई थिंक हम लोग इतने छोटे वर्ल्ड में हैं, हम अपनी बात करो, हमारी बात मत करो। आपकी बात करो. you end up dating actors on or writers or directors. Is it easy to date an actor? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस उम्र में हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप्स आर अमेजिंग एंड अ गुड कंपनी इज लाइक ए गुड ट्रैवलिंग पार्टनर इज अमेजिंग, क्योंकि मैं कभी देखता नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू सेटल डाउन और हैव अ, मतलब मैं हूँ नहीं वैसा आदमी, बिकॉज मैं थोड़ा आई एम ऑल ओवर द प्लेस, सो आई डोंट सी कमिटमेंट, आई डोंट सीक कमिटमेंट. So do they find it easy to date actors? Is like how easy a person are you in a relationship? अब रिलेशनशिप में तो मैं बहुत खराब हूँ, तो इसलिए मैंने रिलेशनशिप करता ही नहीं. आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, आई एम अ ग्रेट फ्रेंड. सो आई थिंक शायद 10-12 साल Why do you say you're not a nice person? बिकॉज क्या होता है ना कि मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे. आइदर आई एम डायरेक्टिंग अ प्ले और आई एम ट्रैवलिंग समवेयर फॉर 2 months और आई एम ऑलवेज आउट एंड इट्स नॉट नाइस. और ऑल्सो मेरे को लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग बहुत ज़्यादा होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी भी एक रिलेशनशिप की या किसी, मतलब मैं अपनी माँ के साथ बहुत टाइम बिताना चाहता हूँ, मैं वो भी नहीं बिता पाता हूँ बिकॉज आई ऑलवेज आइदर ट्रैवलिंग हो. जैसे अभी 2 दिन पहले मेरी माँ 2 दिन के लिए रह के गई, मेरा नाटक देखने आई थी. तो मुझे लगता है मैं हूँ नहीं वो आदमी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता है. एंड आई नो माई सेल्फ, आई एम नॉट दैट. What is the longest period you've been in a relationship? I think in my college days I did for some time, but 1 year, 2 year, long time back. अब तो मैं शायद 10 साल से I have never dated anyone. 10-12 साल, because I know myself. I should, and I'm very happy. I'm happy the way I am. Maybe I'll meet someone जो सब कुछ change कर दे, but I don't think I'm that person. आप क्यों उसको ईर्ष्या से देख रहे हैं? मैं एक क्वेश्चन, क्या गजब की ऑब्जर्वेशन. वो जो लंदन के रेस्टोरेंट में पोलिश लड़की थी, वो एक्चुअल में थी? आपको लगा एक्चुअली में थी? मुझे लगा ऐसा थी. हाँ, मतलब इनकी किताब में है वो. हाँ, मुझे इतना बढ़िया से अनफोल्ड करता है ना ये आदमी स्क्रिप्ट. Yes, Mr. Sanyal. Yes. No, I've had relationships, but I have never settled down. Is it easy to live with you? How easy a person are you? I'm a housewife in a relationship. I love being a woman in a relationship. I love to eat. I love to cook. I love to clean. So whenever I was in a relationship, I used to be the woman in the relationship. But not being sexist, that you woman ऐसा नहीं, मतलब I love doing house, home chores, सब्जी लाना, खाना बनाना, entertain करना लोगों को, whatever. I have grown up seeing my mother do it. So I have been very easy when I'm in a relationship, but it's never worked out that way. And now I'm open. I'm not open. What's the longest you've been in a relationship? 3.5 years, 3-4 years. I've lived in also. It's been amazing. I mean, whosoever I've been with throughout my life, and in between relationship, I've dated other women from all over the world, and they've been amazing people. Like they're so amazing with a lot of love. And I have never been in a bitter relationship. I've never been like, I can't see you, I don't want to see your face. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा वो सुर लगता ही नहीं है कभी. But do they understand the pressures of your job? Like, it's Yeah, not I mean, easy. There's a lot of waiting. There's a lot of. Yeah, like 2 of my relationships which were quite long, they actually left me with a lot of love because they thought that I'm an actor and I need to be on my own. And they couldn't they succumb to the pressure of, not in a bad way. Like there was a relationship, she wanted me, that she was feeling that I was getting bogged down in a relationship. I was not feeling it, but she let me go. And she still talks about it. She let me go so that I can be on my own, And I realized very many years later, that what she meant. In fact, her mother also told her that, what are you doing with Chandu? Let him be. He's a young guy. He's going to travel. क्या है वो शादी वादी की बातें कर रही है इसके साथ तू? And she actually, I didn't understand the concept of marriage then, and I wanted to get married to her. And she said, no, and we were both sort of in love. And she said, no, I can't be with you. So she left me, she dumped me, and years later I realized that what she meant by it.
And it was her mother's wisdom which sort of trickled through her to me. And now they're like great friends. So all the relationships I've been with, they have all been great friends. And I don't think I've ever been a bad boyfriend or a companion. So I flow, and I'm just flowing, since I never decide कि I want to be with this person or not with this person. It's a thing which is a very natural progression, and when people have to And come. was she an actress or was she from a She was a completely theatre- non-film? Theatre actress. She was a theatre So actress. she understood your sort She of understood, way. but her thing was she always wanted to get married and settle down. And she actually wrote a paper on feminism where she said, how feminism is only about being independent. Feminism could only be about also looking after a house, which I think is the most another beautiful aspect of looking at feminism. When she wrote a paper in a college about this. So for me, relationships, I am open, I'm never closed, and people come and go. So if it has to happen, it happens. Yes, young kid on the block. That the only other person can decide. Matlab, if you know any better, then you would fix it. But I don't think it's any different. I mean, they adapt to your. The only thing is they need to adapt to your friends and your family, and everything else is sorted. I'm very. Like, what's the longest you've been in a relationship? I think 7 years or something. Yeah, but. Thanks. Yeah, all these no strings attached people are very Very happy. nice. 7 No, I'm a years very is- happy person in a relationship, and I'm also a very happy person if I'm not in a I've had good relationship. I'm relationship, very, yeah. I'm one of those. मुझे तो लग रहा है पावेल ने इस 15 मिनट में डिसाइड किया है कि सब्जी लेकर आना है या दो लोगों की तरह जिंदगी में मस्त रहने का है I agree. आई थिंक मेरे ख्याल से इस एपिसोड का नाम ही होना चाहिए सब्जी इतना सब्जी का जिक्र होता है सब्जी वाले सब्जी वाले I'll ask you one last question and I'm done. If you had to redo your life, as in if you have to revisit your life and you have to do anything differently, any one thing differently, two things, whatever, like, is there a regret that you have, or is there anything that you redo differently in your life? मैंने हेल्थ का बहुत ध्यान नहीं रखा। मैं शुरू से एक्सरसाइज या वो सब मैंने नहीं कर पाया क्योंकि काम की आपाधापी इतनी ज़्यादा थी। उसका मुझे रिग्रेट रहता कि आज से मुझे अगर रिवाइंड होता 30 साल पहले तो मैं रोज जिम जाता। मैं वो नहीं कर पाया। But it's never too late, this is. आई नो, वो कहने की बातें हैं। नहीं वो नहीं है Your metabolism also becomes much Slows down. slows down. गजब बाबू हाँ Anything? मुझे लगता है अगर मैं बहुत पहले जाके बहुत कोशिश करता और बहुत प्लान करता तब भी मैं इस लाइफ पे इस पॉइंट पे आ नहीं पाता बहुत प्लान करके सो आई एम वेरी हैप्पी द वे एवरीथिंग अनफोल्डेड एंड बिकॉज आप सर्कमस्टेंसेस के आदमी हो ना मतलब मैं रिट्रोस्पेक्ट में बोल सकता हूँ कि आई डिड दिस आई नेवर डिड एनीथिंग इट वाज द लाइफ जैसी आई मैं रिएक्ट करता गया एंड इवेंचुअली आई एम हियर सो आई एम वेरी हैप्पी दैट I can write, I can direct plays, I can run my own company, theatre company, I can travel and I can act also. So everything I do gives me so much happiness that I'm just humble and मतलब मुझे लगता है thank God मैं यहाँ तक पहुँच गया. I had read a review of his book, and one of the lines that stayed with me was, his words are like a balm to the soul. Somebody had said it. Absolutely. I remember reading a book, like I used to go to Ramakrishna Mission a lot as a kid. We are Bengali, so हम लोग सब रामकृष्ण मिशन बचपन से मम्मी का हाथ पकड़ के जाते थे। तो लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद किताबें बहुत बचपन में हर बंगाली पढ़ता है। उसमें था कि नो रिग्रेट्स, तब समझ में नहीं आया था, पढ़ा था नो रिग्रेट्स ऐसे क्या होता है, क्या मतलब है स्पिरिचुअली, क्या मतलब होता है। So like I remember when I got on stage, first day in my life, sense of joy and happiness I got from that. I was playing a role with no lines, and I rehearsed for that play for 6 months. There was nothing in return. My friends came and they all cheered for me, and I was so happy. We went out to Connaught Place and had few drinks, and got lost. Why? Because I became the fourth chore with no lines and I'm on stage. So the sense of happiness which I got from there, it carried on for a long time.
that everything was a positive, everything was a bonus. There was no regret. अरे ये भी कर रहा हूँ, छोटा रोल मिल गया, 500 रुपये मिल गए, 700 रुपये मिल गए, 2000 पर डे हो गया, ये हो गया, ऐसा करते 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 करते. Two things I would think I would like to change in my life, otherwise it has been a great life, is like when I was when I was getting to college in Delhi University, the worst advice was to take science. अब मैं सही बोला हूँ, अब मेरे लास्ट क्वेश्चन में सही आंसर आया. मेरा लाइफ ही ऐसा है कि मेरे सबने बोला यार तू इतना अच्छा पढ़ाई में साइंस पढ़, तो मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया. अब मेरा मन ही नहीं था, मैंने पढ़ा ये सब किया, मैथ्स ऑनर्स ये सब किया. मैं सोचता यार मैं अगर हिंदी लिटरेचर पढ़ता, क्यों मैं नाटक कर रहा था. एंड आई लिसन टू एवरीवन इज तू पढ़ाई इस कंडीशनिंग, नो सोसाइटी टेल्स तू इतना पढ़ाई में अच्छा है, तुझे स्कॉलरशिप पढ़ाई, तो हिंदी पढ़ता है. एंड आई टॉप इन हिंदी इन माई स्कूल. अगर मेरा एक ही, अगर मैं सेंट स्टीफन्स में हिंदी लिटरेचर पढ़ता, कुर्ता पजामा पहन के धूप में वो लॉन में बैठे हुए और रिहर्सल करता शेक्सपियर सोसाइटी में, ये एक मेरी बड़ी इच्छा थी. लेकिन मैं दूसरे कॉलेज में नाटक उतना ही किया, लेकिन मैं अगर मन से हिंदी पढ़ता ना तो मैं टॉप करता यूनिवर्सिटी और नाटक करता खुल के, सेंट स्टीफन्स में पढ़ता. वो एक रिग्रेट रह गया. और दूसरा है कि मैं इंग्लैंड छोड़ के यहाँ फिल्म जब मैंने कमी नहीं की, तो रिग्रेट नहीं है, वो मेरा लाइफ में ऐसा चेंज हुआ कि मेरा बड़ा मन था कि मैं एक्चुअली व्हेन आई वाज इन लंदन डूइंग दिस प्लेस, आई वाज एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स. कि आई मेट अ लॉट ऑफ एमेच्योर थिएटर कंपनीज कि आई वांट टू सेटल डाउन हियर, एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम देयर दे नेवर केम बैक, दे सेटल देयर ओनली. फ्यू श्रीलंकन फ्रेंड्स एंड दिस, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. वो मेरा एक था कि अगर मैं कर लेता, बट वो लाइफ हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, लाइक द लाइफ गेव मी कमीने, एंड आई केम हियर, आई कुड नेवर गो बैक. तो वो ये दो चीज़ें, हिंदी एट स्टीफन्स एंड थिएटर इन लंडन, ये दो मेरा बड़ा मन था करना. यस. Yaf, you can have the last word. I don't know, I have ऐसी regrets नहीं है, but I feel like if I could go back in time, I would like to enjoy more. I have not enjoyed my biggest moments. I get on with, मेरे को ना बहुत stress हो जाता है बड़े बड़े moments में. But then I realized I have to tell myself this is your moment to enjoy. जैसे when से थप्पड़ का premiere था, और उसके बाद this is the dream that you've always had for the longest time your parents have ever had. But at that moment, I'm so stressed that I'm not enjoying anything. I'm just, अच्छा, इसका review क्या आएगा? अच्छा, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? अच्छा, okay, next, what's the next project? What's the next project? What's the next project? With every moment of where everybody else around you is very, very happy for you and they're cheering for you, that's the moment I feel like, no, guys, ये खराब हो सकता है, ये खराब हो सकता है. Let's look for more. Let's look for more. Let's look for more. So that you don't enjoy that moment at all. एंड वो बीत जाता है, देन यू रियलाइज ओ वहाँ पे जब सब लोग चेयर कर रहे थे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, व्हेन दे वर एंजॉयिंग, यू weren't a part of it. So I feel like I could have enjoyed more. You have to take an active step back from that. कि अच्छा, everyone is here, everyone's really happy for you. You just join in. You don't have to. So I hate being the center of attention also, but just enjoy it that they are happy and you can enjoy with them. So I think that's one thing that I want to change about myself in that respect. Nice. Thank you very much. As always, it's been a privilege to talk to all of you. And I've spoken to Pavel and Chandan variously, but thank you so much for being part of this conversation. Thank you. It truly, truly was a privilege. Thank you so much. Thank you. पता है कि चलो टाइम कब